Dear students of BTech second year, I am Dr. Anand Prasad, Associate Professor of Mathematics. I welcome to you today's session. (26/7). After 7 minutes, I will start the session. Good morning. Very good morning, all of you. 20 and 36, roll number. Ajay Lodi. Sachin Pandey. Archie and Sasank Pandey. After 5 minutes, I will start this regular session. Roll number 38. Arpi Verma, I have taken the attendance. Pradeep Jadoo. Shreyansh. 49. 29. Roll number 30. Roll number 48. Shivam Tiwari. Mukesh. Roll number 38. 4. Karade. Roll number 35. And roll number 28. Very good morning, Pooja. Why are you not coming regularly? Morning, sir. खुशी. जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. जैसे मेरा सर बोलिए. रोल नंबर 54. कहिए. टेल मी. हाँ गणेश तुम्हारा हो गया है बेटे 14. रोल नंबर.
Roll number 31. Roll number 31. 20 also. Sir, 34. 34 हो गया मुकेश. Yes, Gide. Sir, 30. Who is 30? कृष्णकांत यादव. कृष्णकांत. हो गया बेटे तुम्हारा भी अटेंडेंस. हो हो गया, आप सभी का हो गया. जो जो लोग मैसेज कर रहे हैं इन सभी का अटेंडेंस. सर 49 कमलेश चौहान 24. 49 चाहिए 45. 49 हो गया बेटा. श्रेयांश 31 मैसेज करूं मैं. ओके सर 31 हो गया बेटे तुम्हारा भी. कुणाल जायसवाल. ओके मैं एडमिट करते समय आपका अटेंडेंस मार्क कर रहा हूं. फिर इसके बाद हम लोगों का रिकॉर्डिंग होता है लेक्चर. फिर इसके बाद उसको क्रॉस चेक करा जाता है चैट बॉक्स को रिकॉर्डिंग में. और फिर इसके बाद असाइन किया जाता है. कुछ लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं. 1-2 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उनको मुझे रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि आप लोगों का रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लासेस का. तो उसमें हम कुछ भी ऊपर नीचे मैनिपुलेशन कर नहीं सकते हैं. यदि आपको कुछ अटेंडेंस को अप्रूव करवाना है तो एचओडी से परमिशन लेके मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं फिर आपको अप्रूव कर दूंगा. रोल नंबर 45. प्रदीप जाडो, you already joined, why not coming? Any internet issues? Going to joining. Okay, now I am going to share this slide today. Okay, dear students of BTech, second year, I'm Dr. Ravin Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Unity Department at Chamradevi Group of Institution Indore. I welcome to all of you on our second lecture based on unit number 4 as a module 4, means the transform calculus as a transform method, integral transform methods. So one of them is Laplace transforms. Here I am studying, and yesterday we have seen all the basic related to the Laplace transform and what are various applications of the Laplace transforms. I am also sharing you in our yesterday class. Today I am going to explain you what are various elementary function and how can you evaluate their Laplace. So I explain of them, some of them, and rest I am given for your homework point of view. You will try at your home, and we also explain by example how can you apply these formulae or the method of Laplace transforms. This is the introduction. Yesterday we have seen. Anybody wants to again take this snapshot, you can take this. Those who are just newcomers for today class, we are given few seconds for taking a snapshot. This is the motivations regarding to this, and the objective is, what are our objective as a goal?
Roll number 21 and Ritik Sharma 21 and 41. हाँ जी, सबसे ज्यादा यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में होता है। इंजीनियरिंग में हम लोग उसको सर्किट इक्वेशंस बोलते हैं और डिफरेंट फील्ड के हिसाब से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट सिनोनिम्स से कॉल करते हैं। इनमें से आपके सामने कुछ यूजफुल फील्ड है, उनमें से एक है सिस्टम मॉडलिंग, फिर दूसरी है एनालिसिस ऑफ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, और फिर थर्ड है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग डीएसपी, जिसका एक सेपरेट पेपर होता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी एप्लीकेशन है एंड सो ऑन। इन दिस वे आप इस थ्योरी को पढ़ने के लिए, इसके कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। वो कौन कौन सा नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होना चाहिए, जो आप लोग अभी तक की पिछली क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं। हम लोग अभी तक की स्कूल टाइम से लेके तो सेकेंड सेमिस्टर तक हम इन मैथमेटिक्स में इन टर्म्स को समझते आए हैं, तो इनके बेसिक फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, मुँह जवानी याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में एक फार्मूला का अल्टीमेट फार्मूला करके एक शीट गूगल आपके कैंपस पे शेयर की थी, उसको आप हमेशा साथ में रखिए, वो आपको कहीं भी काम आएगी। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए आप लोग इस पर बहुत पर्टिकुलर रहिएगा। 56 रोल नंबर एंड 33 क्या यार बेटे, विष्णु चौहान, ओके, विजय चौहान 53 and 17। Okay guys, this is about our basic yesterday we have seen। फिर इसके बाद मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि चूंकि आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल से रिलेटेड है, इसलिए आपको जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक साइन फंक्शन आएगा, कभी कभी कॉस फंक्शन आएगा, तो आपको इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपने 12th क्लास में स्टडी किया है, जिसको आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। जिस तरह का कभी भी इंटीग्रल आता है, आपने गामा फंक्शन में भी इस इंटीग्रल को, इस फॉर्मूले को इंटीग्रल के अप्लाई किया था। इसके बाद फिर मैंने आपको लाप्लास का कंसेप्ट बताया था कि लाप्लास क्या होता है। लाप्लास कुछ भी नहीं होता है, जस्ट एक कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन आपका वन वेरिएबल का होता है, जिसको जब हम इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल में इंक्लूड करते हैं और जब हम इस इंटीग्रल का मान निकालते हैं, तो इस इंटीग्रल का मान चूंकि एस के टर्म्स में आता है, जैसे ये पैरामीटर एस दिख रहा है आपको, जैसे गामा फंक्शन में एन के टर्म्स में आता था, एक नंबर वैल्यू में आता था, नंबर फॉर्म में आंसर आता था। यहाँ पर जो आपको इस इंटीग्रल का जो मान है वो आपको किसके फॉर्म में मिलेगा, एक पैरामीटर एस के रूप में मिलेगा। ये जो पैरामीटर है आपका या तो प्योरली रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, विच में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटे, यदि कोई क्वेश्चन आपको लाप्लास का पूछा है, इसका मतलब ये इंटीग्रल डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है कि इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि आपको बार बार इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जब भी आप लाप्लास के क्वेश्चन करेंगे, यदि आपके सामने दो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, अलग अलग फंक्शन प्रोडक्ट में मौजूद होंगे, तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ेगी। और ये दो फॉर्मूले तो यूजफुल है ही सही, और बाकी जितने बेसिक फॉर्मूले आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के पढ़े हैं, वो सारे काम आएंगे आपके, जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। कुछ फॉर्मूले के डेरिवेशन में इस बात को हम समझेंगे। हमने कल एक समझाया था, लेकिन क्योंकि टाइम
कम था, इसलिए आज हमने फिर से इसको कंटिन्यू करके आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपको एलिमेंट्री फंक्शन के लाप्लास बताऊंगा, केवल इतना पढ़ना लाप्लास में सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी हमें कुछ और नॉलेज रिक्वायर्ड होगा जो हमें इंजीनियरिंग में के सब्जेक्ट में लगेगा। इसलिए हमें इसकी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एडवांस टेक्निक्स भी सीखना होगी, एडवांस मेथड भी समझना होगी। तो हम इसको बेसिक से आगे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेसिक को समझाते हुए हम हायर लेवल पर जंप लगाएंगे। तो आते हैं बेटे, कोई भी फंक्शन दिया है, यदि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है तो इसको हम कंसेप्ट से कैसे निकालते हैं, बेसिक कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं, उसका मैकेनिज्म आज फिर से दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले आप जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का बेसिक फार्मूला होता है वो सबसे पहले लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोटबुक में। एम आई राइट? इसमें कोई शक? ऋतिक शर्मा, आज फिर से आपके सामने ये बात दोबारा मैं रख रहा हूं, जो कल मैंने आपके सामने बात रखी थी, आज इस बात को दोबारा दोहरा रहा हूं बेटे कि सबसे पहले जिस भी फंक्शन का लाप्लास निकालना है बेटे, उसमें सबसे पहले अपन उसका कंसेप्ट को नोट करेंगे यहाँ पर कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन दिया है एफ टी का, उसकी वैल्यू क्या होती है। वो वैल्यू एक इस तरह का एक इंटीग्रल होता है 0 से इन्फिनिटी e raised to minus st f of t dt, है राइट? अब आपके इसमें आपको जो इवेल्युएट करना है वो लाप्लास का फंक्शन क्या दिया हुआ है ऋतिक, मकान या ऋतिक, कोई भी एक अपने माइक को म्यूट करके हमसे बात करें, क्योंकि मैथमेटिक्स इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। श्रेयांश, ऋतिक शर्मा ने 80 हाँ बोलो बेटे, एफ टी की जगह क्या लेना e की होगा? पावर e की पावर 80। ऋतिक शर्मा, तो मुझसे क्लास के बाद बात करोगे, याद रखना, आज की क्लास होने के बाद। देयरफॉर मेरे को मालूम है क्योंकि मैंने मेरा माइक अनम्यूट नहीं किया है, मेरी आवाज सभी के पास जा रही है। आप लोग कुछ अपने माइंड में कुछ और देखते रहते हो, मोबाइल पे, कहीं सिस्टम पे। प्लीज अवॉइड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, पूरा कंसंट्रेशन क्लास की तरफ रखिए। मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप हर चीज क्लियर कर रहा हूँ जो आपको बुक्स में क्लियर नहीं होगी। ओके, तो आते हैं बेटे, लेट अस कम टू दिस स्टेप। सेकंड स्टेप है आपके लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, यदि हमें बेसिक फॉर्मूला डिराइव करना है, उसका ये बेसिक प्रिंसिपल है। तो आपने एफ टी की जगह रखा है e की पावर 80, तो आपके सामने जो इस फार्मूला है इसमें जहां जहां पर एफ टी है उसकी जगह e की पावर 80 रख दीजिए। अब इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है ये आपका जस्ट 12th क्लास का, जैसे आप 12th क्लास में एक इंटीग्रल को सॉल्व करते थे, बस उसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे आप 12th क्लास में या पिछले क्लास में भी मैंने आपको इंटीग्रल को सॉल्व करना बताया है, जस्ट उसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना है। तो आप माखन मुझे बताएगा इस इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करेंगे बेटे, जल्दी से बोलो, बोलिए माखन, नहीं बोल पा रहे हो? ठीक है, ऋतिक शर्मा, श्रेयांश के अलावा और कोई जो भी है क्लास में जरा मुझे बताएं इसके बारे में। भाई अगला स्टेप क्या आएगा, बोलिए बेटे, इतने सारे स्टूडेंट में से अर्पित वर्मा, गौरव चौहान, कोई तो बोलो। कोई तो बोलो बेटे, चलिए ना बोलने की ठान लिए, लेकिन मेरे को तो बोलना है, मेरे को तो समझाना है। ये देखिए बेटे, इंटीग्रल का साइन ऐसे कैसे आ जाएगा, आर के वानी। ओके, सो 0 टू इंफिनिटी आपके सामने है, आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका बेस सेम है, इंटीग्रल के अंदर बेस सेम है, तो आप लॉ इंडेक्स क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडेक्स क्या कहता है, क्या कहता है लॉ ऑफ इंडेक्स? लॉ ऑफ इंडेक्स क्या बोलता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, तो ये घातें आपकी पावर जो है जुड़ जाएंगी, और जुड़ने के बाद आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे ताकि आपको इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। आपके सामने वेरिएबल जो है इस इंटीग्रेशन का वो t है, तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना है। तो आपने इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मालूम होगा,
तो उसको देखते हुए जरा इसका इंटीग्रेशन कीजिए, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई आपकी, ये दूसरी स्टेप आपकी कंप्लीट होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बढ़े आगे, श्रेयांश आगे बढ़े बेटे। यस सर। पूजा सोलन जी, ये रहा इंटीग्रेशन आपके सामने। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर at या ax बोलो, e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या है, माइनस ऑफ s माइनस a, तो ये आ गया आपका माइनस, इधर ले लिया मैंने s माइनस a। लिमिट आपको रखना है 0 से इंफिनिटी। ये डैश का मतलब लेफ्ट साइड एज इट इज है। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर्मूले को डिराइव करके आपके सामने बता रहे हैं। तो अपर लिमिट में आपके सामने आ रहा है e की पावर में माइनस इंफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। हमने पिछले सेमेस्टर में भी, आपने जब गामा फंक्शन के हमने क्वेश्चन किए थे, तब भी ये रिजल्ट हमारे सामने आया था। और भी कई सब्जेक्ट में जब मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशन आपकी होती है, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस में आती है और इंफिनिटी होती है, इनवेरिएंट वेरिएबल टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल की वैल्यू जो है इंफिनिटी होती है, तब आप लोगों को ये वैल्यू 0 यूज करना होती है। सो इक्वल टू 0 माइनस आप, ये आपने लोअर लिमिट आपकी 0 रखी है, तो जहां पर t है उसकी जगह 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, तो आ जाएगा -1 अपॉन s माइनस 1। अब इसको आप ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनली आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस a। Hence proved, this is the verification of our first basic result regarding to the Laplace transforms। a की कोई भी वैल्यू आपको दी होगी एग्जाम में, a की वैल्यू 1 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, a का मतलब कोई भी रियल वैल्यू है, राइट। जैसे आप इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिराइव करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लाप्लास के फॉर्मूले डिफरेंट फंक्शन के लिए डिराइव करके आपके सामने समझा रहे हैं। दूसरा बेसिक फॉर्मूला आ रहा है, दूसरा बेसिक फंक्शन आ रहा है, वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन जिसकी वैल्यू 1 ली है हमने। यदि आपके पास, श्रेयांश एक छोटा क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे बेटे, यदि आपको लाप्लास ऑफ ए निकालना है, 1 की जगह कोई भी एक कांस्टेंट ए हो, मतलब कोई भी एक रियल वैल्यू ए हो, तब इस केस में ये फॉर्मूले से आंसर बताएंगे मुझे, क्या होगा बेटे। बहुत लॉजिकल आंसर है इस क्वेश्चन का। यदि यहाँ पर 1 की जगह ए होगा, तो बताओ इस केस में इसका लाप्लास क्या आएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप आंसर मिल जाएगा बेटे। जैसे 1 है तो 1 है तो 1, हाँ, ए जब ए हुआ तो ए अपॉन एस हो जाएगा, राइट, ए अपॉन एस हो जाएगा। करते हैं इसको हम डिराइव वेरिफिकेशन करते हैं, तरकीब से मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ मेथड को आपके सामने, फिर एक एग्जांपल से बाद में रिकॉल करूंगा इस टेक्निक्स को। बहुत स्कोरिंग टेक्निक है, M3 बहुत स्कोरिंग है, साथ साथ पढ़ते जाओ, पैरेलल में प्रैक्टिस करते जाओ, बहुत छोटा सा काम है, टास्क है, नथिंग डिफिकल्ट। आते हैं हम लोग, सबसे पहले कंसेप्ट लिखेंगे, कंसेप्ट को नोट करेंगे, एग्जामिनर को भी रिकॉल करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। MST में भी आप सोल्यूशन लिखिएगा, कोई भी चीजें स्टेप डाउन मत करिएगा, ठीक है, क्लियर कट सोल्यूशन दीजिएगा, जितना स्पष्ट देंगे उतना स्टेप मार्किंग सटीक होगी। सो ओके गाइस, आ रहे हैं हम इस पॉइंट की तरफ। ये तो हमारी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन में यदि हमें 1 के लिए वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे श्रेयांश। गोविंद, रोल नंबर 16, क्या बात है बेटा आपकी, आप जाके नींद खुली है कि क्लास अटेंड करना है। बोलिए पूजा, कुछ कह रही हो, आपकी आवाज कुछ आ रही है, कम आवाज में सुनाई आई मुझे। पूजा ने तो खुशी ने बोला है कि पूजा ने बोला है। चलिए आते हैं हम लोग, FT की जगह 1 रखेंगे, सभी लोग अपनी कॉपी में FT की जगह 1 रखिए। फॉर्मूले में तो आपका ये इंटीग्रल आएगा 0 से इनफिनिटी e की पावर माइनस st, तो एज इट इज है, ये हर बार आएगा, into 1 ऑफ dt। यदि क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो लाप्लास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t लेंगे। यदि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोई और लेना है तो आप कोई और वैल्यू जो दे रखी होगी वो आप लेंगे, जब कुछ नहीं दिया हो तो t लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, यदि कॉमन डिफरेंस आपको कुछ दिया नहीं है और आपको उसका फाइनाइट डिफरेंस निकालना है, तो आप उसमें h लीजिए या k लीजिए, कोई भी एक आर्बिट्री वैल्यू ले लीजिए। ओके गाइस, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
अपने इस पड़ाव की तरफ आपके सामने यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला इंटीग्रेशन का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 का किसी में भी गुणा करते हैं तो ये मिलता है। और फिर एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन मैंने बताया आपको क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है और डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल आपका -a से, तो -a से डिवाइड करेंगे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 से इंफिनिटी। अभी रखा नहीं है, अभी हम इस सिंबल में स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वॉल्व करेंगे ताकि कुछ स्टेप को हम एक्सप्लेन कर सकें, ताकि आपको स्टेप मार्किंग हो सके, ताकि एग्जामिनर जितने मार्क्स डिसाइड किए वो आपको दे सके। स्टेप जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मेंशन जरूर करिए, डिस्क्राइब जरूर करिए, जितनी भी रिक्वायर्ड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। रखिए बेटे, सबसे पहले अपर लिमिट रखिए। अपर लिमिट रखेंगे टी की जगह इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का किसी के साथ गुणा करते हैं तो इंफिनिटी मिलता है। ई की पावर माइनस इंफिनिटी, ई की पावर माइनस इंफिनिटी होता है, उसकी वैल्यू 0 होती है। फिर से वही बात आ गई हमारे सामने, ये आ गया लोअर लिमिट से 0 माइनस लोअर लिमिट से, टी की जगह 0 रखेंगे। सो कृष्णकांत ई की पावर 0 1 होता है तो 1/s एज इट इज। फिर सॉल्व करो जरा, बाहर ब्रैकेट के माइनस होता है तो अंदर प्लस हो जाता है, तो आपके सामने आंसर आ जा रहा है 1/s। सो इस तरह से आप लोग, हम लोग ये जो बेसिक फंक्शन है उनका लाप्लास निकालना सीख गए हैं। अब इन्हीं को देखते हुए हम इसी तरह से और भी फार्मूले आपके सामने लिख रहे हैं जो आने वाले टाइम में हमको रिक्वायर्ड होंगे। सो सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये हो गया आपका स्लाइड कंप्लीट, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले। हाँ जी बेटे, अगला फंक्शन थर्ड टाइप का कैटेगरी आ रही है हमारे सामने, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन मतलब साइन ऑफ 80। मैं आपको जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, मतलब ए का मतलब कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, ठीक है बेटे श्रेयांश। ए की वैल्यू 3/2 हो सकती है, -3/2 हो सकती है, 1/√2 हो सकती है, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। रियल का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का मतलब रियल नंबर होता है। ओके गाइस, आगे बढ़े तो इसका फार्मूला समझिएगा। इसमें फॉर्मूले में न्यूमरेटर में ए आता है, डिनोमिनेटर में जो पैरामीटर है वो आएगा s² प्लस a²। सो दिस इज द थर्ड फार्मूला। फिर इसके बाद चौथा फार्मूला कॉस का आ रहा है, तो कॉस के फार्मूले में न्यूमरेटर में पैरामीटर s आता है, s² आता है। फिर इन्हीं दो फार्मूले को देखते हुए हम लोग हाइपरबोलिक के फार्मूले भी याद रखेंगे। हाइपरबोलिक का फार्मूला याद रखना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, जस्ट जहां पर साइन का फार्मूला होता है उसमें डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस लेना है। तो यहाँ पर यदि प्लस है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक के केस में माइनस लेना है। इसी तरह से कॉस के फार्मूले में भी यही चेंज होगा आपके सामने। ये रहा आपका कॉस का फार्मूला, कॉस हाइपरबोलिक 80 बराबर s/s² प्लस a²। फिर इसके बाद एक जनरल फंक्शन आता है, जनरल फंक्शन का वैल्यू है t की पावर n, जैसे x² हो, x³ हो, t का मतलब x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, t का मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तब इस केस में इसका फॉर्मूला, इसका जो रिजल्ट आता है वो गामा फंक्शन के टर्म्स में आता है, गामा n + 1/s⁻n+1। जिस नंबर का गामा ले रहे हो उस वही s पैरामीटर की पावर में आएगा। इस तरह से इस फॉर्मूले को याद रखना आसान होता है। श्रेयांश, इसके लिए आप लोग n बराबर 0 रख के भी आपको जो मैंने सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से भी आप डिराइव कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे जिनको हम एज ए स्पेशल प्रॉपर्टी में आने वाले टाइम में स्टडी करेंगे। ये सारे आपके बेसिक फंक्शन हो गए। अब आ रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, इस पर एक एग्जाम्पल और करके बता देते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने एज ए फॉर्मूले के रूप में आपको समझा दिया है, अब मैं इस पर इन फॉर्मूले पे बेस, कंसेप्ट पे बेस एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपके सामने, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आज का क्लास ये कंप्लीट होगा। सो ये रहा आपके सामने, सभी की नजर के सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। यहाँ पर ये फंक्शन दो स्टेप में डिफाइन किया गया है, एक स्टेप है 0 से पाई और दूसरी है फॉर t > पाई। कोई बात नहीं, जो आपकी लाप्लास की का कंसेप्ट होता है उसको आप लोग, क्योंकि दो स्टेप में आप इंटीग्रल के लिमिट्स को आप नंबर ऑफ पार्ट्स में, नंबर ऑफ सब इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। वो जो हमारे इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि कोई एक इंटीग्रल दिया हुआ उसकी कोई एक लिमिट है,
मतलब एक इंटरवल है, उसको आप नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं एज पर योर डिजायर में। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर उस इंटीग्रल के फॉर्मूले को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। टाइम हमने अपडेट कर दिया है। ये रहा आपके सामने सबसे पहला स्टेप जो होता है, जो अभी पहले समझाया था कि आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन होती है आपकी लाप्लास की। लाप्लास ऑफ एनी फंक्शन एफ टी बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब चूंकि आपका जो फंक्शन एफ टी डिफाइन है वो इस इंटरवल में डिफाइन नहीं है, 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन नहीं है, वो दो पार्ट में डिफाइन है, दो पार्ट में डिफाइन है। इसलिए इसको हमें ये जो इंटीग्रल की लिमिट है इसको दो पार्ट में, दो सब इंटरवल में ब्रेक करना होगी। सो दो सब इंटरवल में आप ब्रेक करेंगे। इक्वल टू का साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है। ओके, ये प्लस का साइन अवॉइड कर दीजिएगा। एक पार्ट है आपका इंटीग्रल का, लिमिट है 0 से पाई और दूसरा लिमिट है पाई से इंफिनिटी। ओके, तो आपके पास 0 से पाई के बीच में फंक्शन की वैल्यू आपको cos t दे रखी है और पाई से इंफिनिटी में मतलब t ग्रेटर देन पाई के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन sin t दे रखी है। अब इसके बाद आपके सामने आप खुद देखिए, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो आप या तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे तो आपका टाइम काफी वेस्ट होगा, काफी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हमें ये फार्मूले याद रखना है। एक फार्मूला तो मैंने आपको आज की क्लास में बताया था, कॉस का होता है और एक साइन का होता है। तो हम ये दोनों फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके सामने दूसरा फार्मूला भी रिकॉल कर दिया है। साइन के फार्मूले में माइनस आता है, कॉस के फार्मूले में प्लस आता है, जो कल भी बताया था, आज फिर से रिकील कर दिया। अब इन दोनों फार्मूले को यहाँ पर आप लोग 1 बाय 1 करके यूज करेंगे। पहले कॉस का फार्मूला टर्म 1 में यूज करेंगे, पहले इंटीग्रल में यूज करेंगे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 12 का साइन नहीं है, और फिर इसके बाद यहाँ पर साइन का फार्मूला यहाँ पर आप लगाएंगे। देख लीजिए सभी लोग इसका कैलकुलेशन, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड शेयर करूंगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन। इसके बाद तो फिर जैसे अपन इंटीग्रेशन की लिमिट रखते हैं उस तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले अपर लिमिट पाई रखना है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट 0 रखना है। यहाँ पर अपर लिमिट में इंफिनिटी रखना है तो ये 0 हो जाएगी टर्म, क्योंकि टी की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होती है, और फिर लोअर लिमिट पाई रखेंगे टी की जगह, और फिर इसको क्लब कर लेंगे। दोनों में ये फैक्टर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। देख लीजिए इस कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इक्वल टू का साइन बाय मिस्टेक से आ गया है टाइपिंग में, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा था। ठीक है, तो आपका ये प्लस है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम लोग एक इंटरवल को नंबर ऑफ इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि आपको क्वेश्चन में 2 इंटरवल दे रखे थे, इसलिए हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया। जब 3 पार्ट में 3 स्टेप में क्वेश्चन डिफाइन होगा, 3 स्टेप में जब क्वेश्चन डिफाइन होगा तो आप इंटीग्रल की लिमिट को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देख लीजिए कैसे आई, ये आपके सामने क्लियर है। फिर से लोअर लिमिट तो आपकी लाप्लास में 0 होती है, तो 0 तो लिया ऐसे ही, एक बीच में पाई ले लिया, और फिर क्या हमें नेक्स्ट इंटीग्रल जब हम लिखेंगे तो उसमें चूंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन पाई लेना, मतलब पाई से आगे तक इंफिनिटी है, इसलिए हमने ये 2 पार्ट में ब्रेक किया है। यदि यहाँ पर 3 स्टेप होती, एक और स्टेप होती, तो हम 3 स्टेप में ब्रेक कर देते हैं, इंटरवल को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। ये रहा आपके सामने, ये आपने सभी ने देख लिया होगा। अब हम इसके बाद की स्टेप हम बता चुके हैं ओरली, जिसको हम डिक्टेट करा रहे हैं आपके सामने कैलकुलेशन को। नेक्स्ट स्लाइड एज द लास्ट स्लाइड टू फॉर टुडे, आई थिंक सो। बड़े श्रेयांश आगे, कृष्णकांत। यस। ओके बेटे, ये आ रहा हमारे सामने कैलकुलेशन। वही लिमिट का अपर लिमिट में पहले पाई रखा, फिर 0 रखा, फिर इसके बाद यहाँ पर अपर लिमिट में इंफिनिटी रखा तो उससे 0 होगी टर्म्स। तो इस तरह से आपके पास सिंप्लीफाई होने के बाद ये एक्सप्रेशन मिलेगा, और फिर इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई करोगे, मतलब ये और ये कॉमन फैक्टर है, ये दोनों ब्रैकेट में से कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर क्या बचेगा आपके पास, एक एस की टर्म बचेगी, उसको पहले लिख ली,
और फिर इसके बाद e की पावर माइनस एस पाई की टर्म्स भी 2 टर्म है, इनमें से ये पावर कॉमन ले लिए, टर्म कॉमन ले लिए, फैक्टर कॉमन ले लिया, तो आपका अंदर जो बैलेंस बचेगा वो s माइनस 1 होगा। आई थिंक सो दिस इज द लास्ट स्टेप। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, क्या ओपन तो होगा ही नहीं, क्योंकि ओपन करोगे तो अल्टीमेटली इसके साथ फैक्टर है, सिंप्लीफाई होगा नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडे सेशन। कम टू बी। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बचे हुए कुछ सेकंड्स के लिए आप डाउट पूछ सकते हैं, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, मैं दे दूंगा। सर हाँ बोलिए बेटे। सर फॉर्मूला नंबर 4 एक बार रिपीट कर दीजिए। नहीं 5 5 5 ओके। हाँ 5 ऐसा था बेटे कि आपके पास साइन का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जो भी टी का Yes, sir. कोएफिशिएंट दिया है वो आपको यहाँ पर न्यूमरेटर में लेना है और डिवाइड करना है पैरामीटर का स्क्वायर प्लस जो भी कांस्टेंट में मल्टीपल दिया हुआ है, रियल वैल्यू दे रखी है, उसका स्क्वायर करना है। अब यदि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है हाइपरबोलिक के केस में, तो आपको सिंपली प्लस की जगह यहाँ पर क्या लेना है, माइनस लेना है। प्लस की जगह माइनस लेना है, तो आपका फॉर्मूला नंबर 5 याद हो जाएगा। और 4 के लिए ये बताया कि जहां पर कांस्टेंट आता है उसकी जगह यहाँ पर कॉस के केस में पैरामीटर आता है। अब इसको डिराइव कैसे करते हैं, फार्मूले की मेथड सेम है जो अभी बताई, पिछले 2 फार्मूले जो डिराइव करके बताया उसी तरह से डिराइव करते हैं। यहाँ पर आपको चूंकि साइन आ रहा है तो साइन का अभी एक्सपोनेंशियल के साथ जो फार्मूला बताया वो लगेगा, फिर इसमें कॉस के साथ जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा तो वो फार्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मत लगेगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और फिर हाइपरबोलिक में जो हाइपरबोलिक का हमने पास एक्सपोनेंशियल में फार्मूला होता है वो आप यदि उसमें रख देंगे और फिर उसके बाद उसको ब्रेक कर देंगे, तो फिर इसके बाद जो आप साइन का और कॉस का निकालते हैं वही चीज यहाँ पर यूज होगी। तो कॉस का हाइपरबोलिक फार्मूला याद रखने का तरकीब बताया है, प्लस डिनोमिनेटर में प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अब आगे की स्लाइड बताऊं, 6 नंबर फार्मूला। यस सर। बताओ, ये देखो आपके सामने कॉस का हाइपरबोलिक फार्मूला अभी याद हो जाएगा आपको, डिनोमिनेटर में माइनस आ रहा है और ये आपके लिए जनरल फार्मूला है। कोई भी पॉलिनोमियल है यदि उसकी डिग्री n है तो उसका हम लाप्लास कैसे निकालते हैं, अलजेब्रिक पावर में वो आपके सामने दे रखा है। जैसे आप एक इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखते हैं x की पावर n, बताओ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन डिवाइड बाय n+1 है ना। n+1 तो देखो बेटा काफी चीजें सेम है, यहाँ पर भी ये पावर में +1 हो गया, इसका गामा लेना है और डिनोमिनेटर में वो जो पावर है वो आपको पैरामीटर के ऊपर लेना है, पैरामीटर की पावर होगी। n कोई भी आपके सामने वैल्यूज हो सकती है, 0 से स्टार्ट होगी, 0 2 3 4 5। आपने चूंकि गामा फंक्शन की सारी प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपको जो पिछले सेमेस्टर में M2 को मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड यूनिट में, तो आपको यहाँ पर पैरेलल वो सारी प्रॉपर्टी काम आएगी इस चैप्टर में। जब जब गामा फंक्शन से आप मुकाबला करेंगे तो आपके सामने वो सारे फॉर्मूले फेस होंगे। और बोलिए, और कौन सी स्लाइड शेयर करूं आपको, और कोई डाउट हो तो। आज की क्लास में इतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको कल की क्लास भी समझ में आएगी। इसके पहले मैंने ये आपको डेरिवेशन समझाए, ये आपको सभी को दिमाग में सेट हो गए होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया मैंने। यहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होगी इस स्लाइड से। गोविंद बोलिए बेटे, गोविंद टेल मी अबाउट योर डाउन, ऐसे बताइए। अटेंडेंस से रिलेटेड कोई मैटर हो तो मैं आपका अटेंडेंस ले चुका हूँ 60 रोल नंबर, इसके अलावा कोई दिमाग में। यस सर। सर 53 बोलो बेटे। सर रोल नंबर 53 एक मिनट रुकिए, रोल नंबर 53 विष्णु चौहान हो गया बेटे तुम्हारा, अटेंडेंस ले लिया। सर रोल नंबर 24
और किसी को भी कंफ्यूजन है? हाँ 24 कमलेश चौहान तुम्हारा भी हो गया बेटे? सर 53 हो गया क्या? हाँ 53 हो गया, 24 हो गया। और बोलिए किसी को कोई और